Now, let's proceed with the chapter. Let's start with length measuring devices. Let's move on to this topic, length measuring devices. Now we'll study about all those instruments or devices that we generally use to measure the length. The most common, the most frequently used devices is the scale, the ruler. Most of you might be having it in your bag, in your pencil box, or the measuring tape, the ruler और the scale जिसे हम कहते हैं, or the measuring tape. Let me show this device. I have got it with me right now. This such a type of scale, the ruler, and definitely you must be having this device in your pencil box. There's a slight bigger size ruler or the scale. You might be having this in your bag, and this is, see this is a measuring tape. This is a measuring tape, and this is also used to measure the length. In different applications, if I wish to measure the length of the chalk, यदि मुझे इस chalk की length measure करनी है या इस marker की length measure करनी है, if I wish to measure the length of this chalk or if I wish to measure the length of this marker, probably the usage of this scale would be fine, no issue. हम इस chalk के एक end को scale के एक end पर रखेंगे and then we'll note down the reading at the other end of the chalk. यदि मुझे इस मार्कर पेन की लेंथ मेजर करनी है तो यह स्केल भी काम आएगी, बड़ी स्केल भी काम आ जाएगी. While if I wish to measure the length of this board, इस बोर्ड की लेंथ यदि मुझे मेजर करनी है, या फिर if I wish to measure the length and breadth of this hall or the height of this hall, in that case हम इस छोटी स्केल को अवॉइड करेंगे. छोटी स्केल कुछ छोटा ही इंस्ट्रूमेंट हो गया, हम इस स्केल को भी अवॉइड करेंगे. In that case probably one would use this measuring tape. इस मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे. इसकी लेंथ कुछ शायद 5 मीटर तक है और इस बोर्ड की लेंथ मेजर की जाएगी या फिर इस हॉल की हाइट मेजर की जा सकती है, इस हॉल की लेंथ और ब्रेड्थ मेजर की जा सकती है. इन सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी यूज दिस मेजरिंग टेप और द स्केल. अब इन मेजरिंग टेप और स्केल के बारे में आप जरा ध्यान से देखिए किस तरह की है, किस तरह की दिखती है. यदि आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके इनको ड्रॉ कर रहा हूं. स्केल की 2 एजेस हैं और इन दोनों एजेस पर जो ग्रेजुएशन होता है, जो मार्किंग होता है, वो 2 अलग अलग यूनिट में होता है. On one side we have got marking in centimeters. This is in centimeters. Here if we have 3 centimeter, then we have got 10 divisions
between each centimeter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is 10. Here we'll find 4 centimeters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then there's 5 centimeters, and so on. While on another side, the graduation is generally in inches. जो दूसरी साइड है उसको जनरली अपोजिट डायरेक्शन में मार्किंग करा जाता है. इट इज इन इंचेस. और किस तरीके से होता है वह मैं उसे भी दिखाता हूं. इफ लेट अस से दिस इज 4th इंच. लेट अस से हमने 4 से स्टार्ट कर देते. तो 4th और 5th इंच बिटवीन each 1 inch there are generally 20 divisions. इधर 20 divisions बनाते हैं जनरली. हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is half inch. And then once again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the 5th inch. In this manner, मुझे हल्का सा मैंने एक छोटी सी गलती करी है. टू द स्केल यदि हम बनाएंगे, टू द स्केल बनाया जाए तो ये इंच की विड्थ इतनी कम नहीं दिखेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is 10th division, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is 5th. Anyway, हम टू द स्केल नहीं बना रहे हैं. रफली कुछ इस तरीके से एक मेजरिंग टेप या जो मेजरिंग टेप या जो स्केल है इसमें कुछ इस तरीके से ग्रेजुएशन और मार्किंग दिखती है. What I wish to communicate is through this scale one could easily measure the length in centimeters, in millimeters or in inches. The length would be measured in centimeters or millimeters or in inches. And what is the minimum measurable length? इस स्केल के द्वारा जो मिनिमम मेजरेबल लेंथ है, what is that? I'll say it's 1/10th part of centimeter or 1 millimeter. The minimum measurable length minimum or smallest
measurable length is 1/10 centimeter or 1 millimeter, and this is termed as least count. This is termed as least count. This is least count of measuring tape, or this is the least count of a scale. What is least count? Least count is the least quantity that could be measured through any instrument. यह जो लीस्ट काउंट है, यह किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफाइन करा जा सकता है। वह मेजरिंग डिवाइस चाहे कैपेसिटेंस मेजर कर रहा हो, चाहे रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हो, चाहे लेंथ मेजर कर रहा हो, चाहे वॉल्यूम मेजर कर रहा हो, चाहे वह कोई टाइम मेजर कर रहा हो, चाहे वेट मेजर कर रहे हो, मास मेजर कर रहे हो, हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें हम कोई से भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम मिनिमम क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट और द मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी. थ्रू दिस measuring tape or through this scale, one could measure the least length of 1/10 centimeter or 1 millimeter. Its least count is 1 millimeter. And on the other side, if we measure it through other side, the least count is here. I'll say here the least count is 1/20 इंच. हम यदि इस स्केल की इस साइड से, अपोजिट साइड से, ऑल्दो बहुत कम लोग मैंने इंचेस में मेजर करते देखे हैं, सिंस एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो अधिकतर तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में ही इस्तेमाल होता है. बट इंच का कहां इस्तेमाल होता है, कैन यू इमेजिन? भाई जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पर जनरली फिट और इंचेस का इस्तेमाल होता है. इफ आई एम गोइंग टू बाय फ्लोर टाइल्स, यदि मैं फ्लोर टाइल परचेस करने जाता हूं तो वहां पर जो टाइल की साइज दी जाती है वह इंचेस में दी जाती है. 1/1 फीट, 2/2 फीट, 2 फीट बाय 2 फीट, और 8 इंच बाय 6 इंच और 8 इंचेस बाय 8 इंचेस, इस तरीके से वो टाइल्स होती हैं. तो जनरली कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो मेजरमेंट होता है वह फिट और इंचेस में होता है, वहां पर जरूर इस स्केल का इस्तेमाल होता है. बट हमारे केस में हम जनरली मिलीमीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. देखिए किस जगह पर यह स्केल उपयोगी है और कहां नहीं है, इस बात को भी समझे. यदि मुझसे इस मार्कर की लेंथ पूछी जाए तो यह स्केल इफेक्टिव है. इस स्केल से इस मार्कर की लेंथ बताई जा सकती है. मैं मार्कर के एक एंड को स्केल के 0 पर रखूंगा और मार्कर के दूसरे एंड को मैं स्केल से रीड कर लूंगा. इट्स सम 13 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर, 13.7 सेंटीमीटर और 137 मिलीमीटर. यदि मुझसे इस चौक की लेंथ पूछी जाती है, इस चौक की लेंथ बताने के लिए भी यह स्केल इफेक्टिव है. दिस स्केल कैन बी यूज्ड. वंस अगेन द सेम मेथड, क्योंकि इस चौक की लेंथ इस स्केल के रेंज में आती है, मैं स्केल के एक एंड पर रखूंगा और कोट कर दूंगा इट्स 8 सेंटीमीटर.
When somebody asks me what is length of this pencil, तो यह स्केल उपयोगी है, इजिली मेजर की जा सकती है. Now, just imagine if somebody asks me what is diameter of this pencil, इस पेंसिल की डायमीटर क्या है. If somebody asks me what is the diameter of this chalk, और if somebody asks me, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का मैं कैप ओपन कर लेता हूं. If somebody asks me what is internal diameter of this cap, what is external diameter of this cap, if somebody asks me what is internal depth of this cap, ये जो मार्कर पेन का ढक्कन है, ये जो कैप है, इसका मुझसे डेप्थ पूछा किसी ने कि इसकी गहराई क्या है, इसका इंटरनल डायमीटर क्या है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या है. In all this measurement, this metric scale would fail. यह मेट्रिक स्केल इन मेजरमेंट को करने में फेल हो जाएगी. We would need some better device, some superior device. और वही सुपीरियर डिवाइस के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं. नाम हमने पहले ही बता दिया है, वर्नियर कैलिपर्स. अब वर्नियर कैलिपर पर आने से पहले हमने इस स्केल का लीस्ट काउंट मेजर कर लिया है, दैट इज 1 मिलीमीटर. अब एक बात और बता दूं मैं, जैसे हमसे किसी ने इस चौक की लेंथ पूछी, और इस चौक की लेंथ हमने स्केल से मेजर करी. लेंथ ऑफ द चौक हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं. हमने चौक के एक एंड को 0 पर रखा और दूसरे एंड पर इसकी लेंथ मेजर करी 8 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ चौक जो हम रीड कर रहे हैं स्केल से, दैट इज 8 सेंटीमीटर और 80 मिलीमीटर. अब वंस अगेन हमारा यह पूछना है, दिस इज ऑब्जर्व्ड लेंथ. यह जो लेंथ बताया जा रहा है, यह ऑब्जर्व्ड लेंथ है. ऑब्जर्व्ड लेंथ मतलब इस स्केल के द्वारा मेजर करने पर चौक की यह लेंथ मेजर हुई, ऑब्जर्व्ड हुई. मैं पूछता हूं कि क्या चौक की एग्जैक्ट लेंथ 80 मिलीमीटर ही है? नहीं. यह जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे हम एक्चुअल या एग्जैक्ट लेंथ नहीं कह सकते हैं. एक्चुअल और एग्जैक्ट लेंथ ऑफ चौक हम कहते हैं इस स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है. इसका मतलब इस स्केल से जब हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो प्लस और माइनस 1 मिलीमीटर तक का डिफरेंस हो सकता है. इस चौक की लेंथ 80 मिलीमीटर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे प्लस 1 मिलीमीटर भी हो सकती है और
प्लस -1 मिलीमीटर भी हो सकती है। मीन्स द ट्रू लेंथ ऑफ द chalk would be somewhere between 79 मिलीमीटर टू 81 मिलीमीटर। हम जब 80 मिलीमीटर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक्चुअल लेंथ उसकी 79 मिलीमीटर से ज्यादा है और 81 मिलीमीटर से कम है। 80 मिलीमीटर हमने ऑब्जर्व करी है। ये जो लीस्ट काउंट है, जनरली इतना एरर हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे मेजरमेंट में आ सकता है। अच्छा, इधर हमने ये जो डिफरेंस है ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में इक्वल टू लीस्ट काउंट दिया है। कई जगह पर, कई प्रॉब्लम में, कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, कई सिचुएशन में हम एरर को हाफ ऑफ लीस्ट काउंट भी कह देते हैं। एरर इन मेजरमेंट, half of least count or least count. It depends on problem, it depends on situation. यदि प्रॉब्लम में दिया गया है द एरर इन मेजरमेंट स्कीम इज हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, तो यह जो लेंथ हमने 80 मिलीमीटर कही है, इसी जगह पर हम कहेंगे कि द एक्चुअल लेंथ वुड बी बिटवीन 79.5 मिलीमीटर एंड 80.5 मिलीमीटर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि वह 79.1 मिलीमीटर है तो हम प्रोबेबली उसको 79 मिलीमीटर रीड करेंगे। 79.1 मिलीमीटर है तो उसमें देखी नहीं जा सकती, 1 मिलीमीटर से कम तो हमको दिखता ही नहीं ना इसमें, तो 79.1 मिलीमीटर को हम 79 मिलीमीटर रीड कर लेंगे। और यदि वह 80.8 मिलीमीटर है एक्चुअल लेंथ, तो हम उसको शायद 81 मिलीमीटर रीड कर लेंगे। इस तरीके से व्हाट वी मीन टू से इज कि स्केल से मैक्सिमम जो एक्यूरेसी ऑब्टेन की जा सकती है वो 1 मिलीमीटर तक ही की जा सकती है। 1 मिलीमीटर से फर्दर एक्यूरेसी ऑब्टेन नहीं की जा सकती। इसका जो लीस्ट काउंट है वह 1 मिलीमीटर है। तो 80 मिलीमीटर जब हम कह रहे हैं, चौक की जब एक्चुअल लेंथ, जब हम चौक की लेंथ 80 मिलीमीटर मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ या तो यहां कहा जाना चाहिए 79.5 मिलीमीटर से अधिक या 80.5 मिलीमीटर से कम। इफ वी टेक एरर एज हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, व्हाइल इफ वी टेक एरर एज इक्वल टू लीस्ट काउंट, तो हम 79 मिलीमीटर से 81 मिलीमीटर के बीच में कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जनरली जो आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा उस सिचुएशन को देखकर आपको लेना है। एनीवे, जैसा मैंने कहा, दिस स्केल हैव गॉट लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है समझ में आ गया? देयर इज लिमिटेशन इन एक्यूरेसी, द लिमिटेशन इन प्रेसिजन, लिमिटेशन इन लीस्ट काउंट, and also the limitation in its design, its make. हम इस तरह की स्केल से या इस तरह के मेजरिंग टेप से डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, डेप्थ मेजर नहीं कर सकते और एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर पाएंगे। कई जगह पर हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है। कहां ज्यादा चाहिए होती है, चलिए मैं उसका भी एग्जांपल बताता हूं। जैसे यह मार्कर पेन और इसका कैप, इस मार्कर पेन का एक्सटर्नल डायमीटर और इस कैप का इंटरनल डायमीटर, दैट इज रिलेटेड, यू कैन इमेजिन। भाई, इस मार्कर पेन का एक्सटर्नल डायमीटर और इसके कैप का इंटरनल डायमीटर, इनमें आपस में संबंध है। ये नॉन कोरिलेटेड नहीं हो सकते।
आप इस बात को मानो कि इस कैप को यदि इसके ऊपर लगाना है तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर और इसका इंटरनल डायमीटर बराबर होना चाहिए, और न केवल बराबर होना चाहिए, उसको कुछ इस तरह से होना चाहिए दैट दिस कैप शुड एग्जैक्टली फिट इनटू दिस मार्कर पेन। इस कैप का इंटरनल डायमीटर यदि हल्का सा भी बड़ा हो गया तो यह कैप इस मार्कर पेन के अंदर फिट नहीं हो सकेगा, वहां पर एयर गैप रह जाएगी। अब ये जो मार्कर है इसमें जो इंक है दैट इज वोलेटाइल, उड़ती है वह, यदि खुली रह जाए, एयर गैप रह जाए तो 1 या 2 दिन के अंदर में तो सारी वह इंक उड़ जाएगी और यह मार्कर पेन बेकार हो जाएगा। इस मार्कर पेन की यूटिलिटी बनाए रखनी है, इसकी उपयोगिता बनाए रखनी है, तो इस मार्कर पेन के ऊपर एक एयर टाइट कैप लगा हुआ होना हमेशा अनिवार्य है। यदि यह एयर टाइट कैप नहीं लगा हुआ है तो यह मार्कर पेन 2 दिन के अंदर पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंक जो है वह उड़ने वाली है। अब while designing, while manufacturing this cap and this marker pen, it's very necessary to measure this dimensions accurately. Here the accuracy needed is more than 1 millimeter. The precision needed is more than 1 millimeter. हमें जो लीस्ट काउंट चाहिए वह 1 मिलीमीटर यदि रहा, 1 मिलीमीटर के लीस्ट काउंट से यदि मेजरमेंट करा तो निश्चित यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव होएगी, यह पेन ऐसा बनेगा जो किसी काम का नहीं है। कहीं पर ढक्कन बहुत टाइट हो जाएगा और कहीं पर वह इतना ढीला हो जाएगा कि उसमें फिट ही नहीं होएगा। इन सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी नीड बेटर डिवाइस, बेटर इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट बेटर इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को समझते हैं कि किस तरह से वह एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है, बेहतर मेजरमेंट के साथ और कम एरर के साथ मेजरमेंट करा जा सकता है। नोट इट डाउन, लेट्स स्टार्ट विथ वर्नियर कैलिपर्स।